Hello and welcome to my channel. Once again, students, I welcome you to my channel. And today we are going to study part second of our video. This lecture series is going to be 20 videos almost, less or more than 20. So I hope you stick to the end and you will get best and best solution to your soil mechanic problems. So let's start. Today our topic is uh, water content and other formulas related to the soil. Let's suppose this is a soil. Okay, there are phases of soil. First of all, let's suppose you can grab a piece of soil directly from the outside environment. Okay, soil may contain soil particles like this. This will be like, let's suppose these are soil particles. It may contain some amount of water. Sorry, let me make it properly. Let's say this much is water and this is air, top portion. Obviously, when you grab a soil from the outside environment, it will contain soil, water, some kind of moisture as well as air. Okay, from this side we will write weight, and from this side we will represent volume. Okay, let's say this is the weight of soil. Okay, this portion is the weight of water and this portion is, so we know there is no weight of air. Let's, for the sake, we will write weight of air. Okay. Here we may say this is the volume of soil. This we will say this is volume of water. This is volume of air. Okay. Obviously, when we get to see the soil, we see these are soil particles, and in between these are voids. Okay, and these voids are consist of air plus water. Okay, then we may say this portion is volume of voids. Okay, it will be represented VV. Okay, then what will be this? This is already we have this written this as volume of soil, or we may say volume of solids. Okay, solids. Now based on this we can write couple of formulas. Okay, first of all, our first formula will be water content. So how can we find out the water content? Water content is weight of okay, water content of soil means amount of weight of water upon weight of solids, or we can write it as W is equal to WW upon WS. Okay, second part, void ratio. Okay, void ratio will be represented by E. Okay, and void ratio, what is void ratio? Volume of voids to the volume of solids.
which is represented by E is equal to volume of voids upon volume of solids. Okay, I will not be going into too much detail. I will be writing to the point so that you will remember it. This is mostly for those students who know little bit, have basic knowledge. By this way, you will get faster results. From void ratio, there is also another term, porosity. Okay, which can be represented by neta. Neta means uh, volume of voids upon total volume. Okay, volume of voids there is a couple of things about E and neta. When we say it's the ratio of the volume of voids upon total volume, we obviously know volume of voids will be less than volume of total volume. So overall neta will be less than 1, and it is greater than 0. Okay, but in case of E, since E is equal to volume of voids upon volume of solids. Sometimes volume of voids may be greater than volume of solids, or volume of voids may be less than volume of solids. So E can be greater than 1 as well. Okay, E जो है वो greater than 1 भी हो सकता है. Okay. Now we come to another point, degree of saturation. Okay, S is equal to वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स. ठीक है, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉरी डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स. वाइड्स अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. वर्ड्स में कितना पानी है वो बोलता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेटेड कितना है, कितने वर्ड्स हमारे सैचुरेटेड है. ठीक है, ये एक ट्रिक है जो हम याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. देन देयर इज़ अ फिफ्थ टर्म, परसेंटेज एयर वाइड्स. इसी के साथ ठीक है, ये क्या बोलता है, कितना एयर टोटल वाइड्स में है. ठीक है, यहाँ पर तो हम देख रहे थे पानी, यहाँ पर देखेंगे हम कितना एयर है. और इसको हम तो मैंने बोल दिया, इसको नीटा ए से रिप्रेजेंट करता है. देन सिक्स टर्म हमारी क्या है, वी हैव डिस्कस वाटर कंटेंट, एयर कंटेंट. हाँ, एयर कंटेंट. एयर कंटेंट जो होता है ए सी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स. ओके, अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप एस को देखोगे, एस जो है वो है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स. ठीक है, और एक और टर्म यहाँ पर अगर इसको देखोगे, ए सी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स. अगर हम इनको ऐड करेंगे एस प्लस ए, ये किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन टोटल वॉल्यूम, सॉरी ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, हाँ, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स. ओके, ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स. अगर आपको पहली टर्म में अगर आपने देखा हो, यहाँ पर हमने देखा था, क्या देखा था, जो वॉल्यूम ऑफ एयर
होता है और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है, इनका सम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के। सो अगर हम यहाँ पर देखें, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इक्वल्स टू 1। देयरफॉर हमारे पास एक रिलेशन आती है, क्या आती है, S प्लस ए सी इक्वल्स टू 1। ये एक रिलेशन है जो हम याद कर सकते हैं। देन एक और टर्म यहाँ पर आती है जो हमने अभी वाइड रेशो पढ़ा था और पोरोसिटी पढ़ा था। ई जो होता है वो होता है बराबर नीटा अपॉन 1 माइनस नीटा, ठीक है, इक्वल्स टू नीटा अपॉन 1 माइनस नीटा, और नीटा हम ऐसे लिखते हैं ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। अभी हम यहाँ पर जो है इन सारी टर्म्स को एक फार्मूला के शेप में देखेंगे, एक टेबल बनाते हैं ताकि हम इन सबको प्रॉपरली रिमेंबर कर सकें। ओके, एक अलग सा मार्क लेंगे। सबसे पहला क्या हमने पढ़ा, वाइड रेशो ई इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, ये हमने एक टर्म पढ़ी। देन सेकंड टर्म क्या पढ़ी हमने, ई नीटा जो होता है वो होता है बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। देन थर्ड टर्म क्या पढ़ी हमने, एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होता है वो होता है बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉरी कितना वाटर है टोटल वाइड्स में, है ना। हाँ, देन फोर्थ क्या पढ़ा था हमने, नीटा ए एयर परसेंटेज एयर वाइड्स, वो होता है बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। देन फिफ्थ क्या पढ़ा था हमने, एयर कंटेंट, वो होता है बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, नीटा ए में और इसमें फ़र्क क्या है ये आपको याद रखना है। नीटा ए में जब भी आएगा तो टोटल वॉल्यूम आएगा, यहाँ पर जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ओके, फिफ्थ सिक्स हमने क्या पढ़ा था, हाँ सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ओके, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो वेट ऑफ वाटर है वो हो सकता है ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉलिड्स, सो वाटर कंटेंट जो है ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ओके, इसके बाद हमने जो एक और टर्म पढ़ी थी, दो रिलेशन पढ़ी थी हमने, ई इक्वल्स टू नीटा अपॉन 1 प्लस सॉरी 1 माइनस नी, उसको अरब करते हैं 1 माइनस नीटा, और नीटा इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई, ये जो है सेवन्थ फार्मूला है। एट्थ फार्मूला क्या पढ़ी थी हमने, एस प्लस ए सी इक्वल्स टू 1। ये जो है ये बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज है जो हमको किसी भी हालत में याद करनी है, ठीक है। ये वाली तो किसी भी हालत में याद होनी ही चाहिए। इनमें से भी कुछ फार्मूला जो है जो बिल्कुल हमेशा यूज़ होती हैं, जो मैं यहाँ पर एक आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ एक बार। जो है ये आपकी फार्मूला जो है ये बिल्कुल आपको किसी भी हालत में मेमोराइज़ होनी चाहिए, ये भी किसी हद तक यूज़ आती है। इसके अलावा आपको जो है ये चीज़, ये रिलेशन याद होनी चाहिए, है ना। और हाँ, यहाँ पर हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, ई जो है कैन बी ग्रेटर दैन 1, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ओके, एक और जो हमें यहाँ पर था, नीटा जो है 0 से 1 के बीच में हो सकता है, ये भी जो है ये आपको याद होना चाहिए। वाइड रेशो ओब्वियसली ये चीज़ तो याद होनी ही चाहिए, पोरोसिटी भी पता होनी चाहिए, और ये जो है ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजिंग पॉइंट लगता है। यहाँ पर इसमें बच्चे चीज़ें भूल जाते हैं। ये जो है एस जो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वाइड्स में कितना पानी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ये तो आपको याद करना है। यहाँ पर क्या एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको परसेंटेज एयर वाइड्स और एयर कंटेंट, इन दो टर्म्स में आपको यहाँ पर जो है चीज़ें
बोलने का खतरा रहता है। यहाँ पर जो है ये वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है और यहाँ पर जो है टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है। जब भी आप बोलेगा परसेंटेज एयर वाइड्स, आप समझ जाना कि टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है। और जब सिंपल एयर कंटेंट बोलेगा तो वाइड्स में कितना एयर है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सी कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको हो सकता है याद ही हो, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको काम आ जाएंगी। ओके, एक जो है आपका एक फार्मूला होती है जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये होता है गामा सॉलिड्स अपॉन गामा डब्ल्यू। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। यहाँ से आपको जी की कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। एक जो आपके पास इनऑर्गेनिक सॉइल होती है, सॉरी, इसका जी जो है किसके बीच में होता है, 2.65 से लेके 2.80 के आसपास रहता है आपका जी वैल्यू। और जो ऑर्गेनिक सॉइल रहती है जी वैल्यू किसके बीच में रहती है, 1.2 से 1.4 के बीच में। ये वैल्यू जो है आपको याद रहनी चाहिए। हो सकता है कभी पूछ लेगा किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास गामा डब्ल्यू होता है, जो कि बच्चों को अक्सर गलतियाँ करने के कर जाते हैं, यहाँ पर ये होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा अगर आप इस चीज़ को आज ही क्लियर नहीं करोगे तो। ओके, और 1000 kg/m³। और देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ग्राम की, यहाँ पर तो एब्सोल्यूट वेट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एब्सोल्यूट वेट की बात हो रही है। और जब आपका, ये तो हम एक हिसाब से देख रहे हैं मास डेंसिटी, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर बोलेगा वेट की बात, तो तब आएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर जो ये चीज़ें, ये 981 कब लेंगे, देखो कभी कभी बच्चे बोलते हैं ये गामा डब्ल्यू 9.81 क्यों लिया किलो न्यूटन्स में, या कभी बोलेंगे 1000 kg क्यों लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से चीज़ समझेंगे, आपने पढ़ा होगा मास जो होता है वो होता है केजीज का यूनिट, और वेट डब्ल्यू जो होता है वो केजी को हम मास को मल्टीप्लाई करते हैं क्या, ओके। जैसे हम वेट जो बोलते हैं, हम बोलते हैं न्यूटन्स में या किलो न्यूटन्स में, ठीक है। इन दो चीज़ों को समझ जाइएगा आप। जब वो डेंसिटी ऐसे, कभी कभी जो है आपकी डेंसिटी, सपोज़ क्वेश्चन में उसने दिया हो गामा डब्ल्यू, सॉरी गामा डब्ल्यू तो वो यूज़ करना हो, सपोज़ ने गामा डेंसिटी किसी सॉइल की दी हुई है 1024 kg/m³, तो आप यूज़ करेंगे गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1000 kg/m³, क्योंकि वो वहीं से जो उसने यूनिट्स लिए, हम भी उसी यूनिट्स के हिसाब से अपने गामा डब्ल्यू की वैल्यू लेंगे। सपोज उसने गामा डी की वैल्यू दी हो 10.24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो हम गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या लेंगे उस टाइम पे, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये होप ये यहाँ पर आपको क्लियर ये चीज़ हो गई हो। इसके आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और रिलेशंस हैं जो हमारे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सॉइल में, ठीक है। ये कुछ बेसिक यूनिट रिलेशंस हैं। मैं आपको डायरेक्टली ये रिलेशंस दे देता हूँ, आप इनको डायरेक्टली रिमेंबर कर दीजिएगा। सबसे पहले एक रिलेशन है
एस ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, ठीक है। सहवाग आप ऐसे रख सकते हैं, यू याद इसकी फॉर्मूला है सहवाग, ठीक है। एस जो है ये है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई जो है वॉइड रेशो, जो कि हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा हुआ है। जी जो है ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और डब्ल्यू जो है ये हमारा वाटर कंटेंट है जी। ये आपको ऐसे याद रखने के लिए सबसे इजी तरीका है सहवाग याद कर लीजिए आप। एक और यहाँ पर फॉर्मूला है गामा, जो कि डेंसिटी कभी भी मांग लेगा, वो होता है जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। यहाँ पर जो है ई तो हमने डिस्कस कर ही लिया क्या है, जी भी हमें पता ही है, एस भी पता ही है, और ये तो हमारी है डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और ये गामा क्या दिया हुआ है, ये गामा जो है डेंसिटी, ठीक है। कभी भी चाहे कितना पानी हो या नहीं हो, ये तो हमें नॉर्मल है, ठीक है। यहीं से एक रिलेशन आता है गामा ड्राई डेंसिटी का, ठीक है। जब आपके पास बोला जाए ड्राई डेंसिटी क्या है, तो आपका जो है एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो ज़ीरो होगी, ठीक है। जब गामा ड्राई डेंसिटी बोलेगा तो आप क्या लिखोगे, जी एस जब ज़ीरो यहाँ पर पुट करोगे तो ऊपर वाली फार्मूला में अगर हम जी यहाँ पर एस ज़ीरो पुट करेंगे, ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ऐसे हमारी ड्राई डेंसिटी हो सकती है, ठीक है। तो एक और फार्मूला यहाँ पर, अब थर्ड फार्मूला की तरफ हम चलेंगे। गामा सबमर्ज्ड जो है वो होता है बराबर गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। ये जो है ये टर्म आपको याद रखनी है, ये बहुत काम आएगी आगे जाके हमें। फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, गामा ड्राई डेंसिटी की एक और फार्मूला है गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, और ये जो ये गामा है ये गामा बल्क डेंसिटी है, ठीक है। इन सितु डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ओके। फिफ्थ फार्मूला क्या है हमारी यहाँ पर, गामा सबमर्ज्ड, या हम ऐसे भी ले सकते हैं गामा जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। एक और हमारे पास सिक्स फार्मूला बन जाती है, गामा ड्री इज इक्वल 1 माइनस नीटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ये फार्मूला एक और है, ठीक है। नीटा ए जो यहाँ पर है ये पता ही है हमारा, परसेंटेज ईयर वॉइड्स का बात हो रही है। एक और जो है सेवन्थ इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू 1 प्लस E1 अपॉन 1 प्लस E2, और इज इक्वल गामा D2 अपॉन गामा D1। ये एक ऐसी रिलेशन है जो कि आपको याद रहनी चाहिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे इस फार्मूला के ऊपर। इसके आगे हमारे पास एक फार्मूला होती है पिक्नोमीटर की, ठीक है। मान लीजिए आपका पिग्नोमीटर है, एम्पिटी है, इसका वेट W1 है, फिर इसमें आपने सॉइल ऐड कर दी है, इसका वेट W2 है, फिर तीसरे केस में आपने इसी सॉइल में पानी ऐड कर दिया, ठीक है, इसका वेट W3 आ गया टोटल वेट। देन पूरे को खाली करके सिर्फ पानी डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा बेटर दिखाने के लिए, इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। इसका वेट W4 आ गया। यहाँ से आपको एक फार्मूला देखने को मिलेगा, जी जो है किसी भी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यहाँ पर जो है हमने कोई सॉइल ऐड कर दी,
ठीक है। इस सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। ठीक है, इसको ट्रिक याद रखने की सिंपल है। कैसे, देखिए W माइनस W, ठीक है, सेम नीचे W माइनस W रख लीजिए, इसको हम माइनस करेंगे फिर W माइनस W। ठीक है, देखिए यहाँ 2 माइनस 1 करेंगे, हम क्या करेंगे 2 माइनस 1, सेम 2 माइनस 1 यहाँ भी आएगा, यहाँ करेंगे 3 माइनस 4। यह आपको जो है ऐसे ही याद रखनी है। ठीक है, एक और जो है ये तो हमने बोल दिया, हमने इसकी सॉरी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट जो है वो W होता है, वो होगा बराबर W2 माइनस W1 W3 माइनस W4। ठीक है, इंटू G माइनस 1/G। ओके, इस पूरे को हम -1 करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये जो है ये टर्म आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर भी याद करने का ट्रिक क्या है W का, आप ऐसे लिखोगे W माइनस W अपॉन W माइनस W। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, G माइनस 1/G माइनस 1, ठीक है, इंटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, एक और एक शॉर्ट टर्म बोलता हूँ, G जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और GM जो होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ये जो है GM ये वेरिएबल होता है और G जो है ये फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड क्यों होता है, क्योंकि देखिए अब आपको पता है कभी भी एक डेंसिटी जो होता है ये मास डेंसिटी के ऊपर होता है और ये जो है अपेरेंट होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो है ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। बट एक बार मैं आपको एक फार्मूलाज सब फार्मूलाज फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहली फार्मूला जो है वो है SEWG। ठीक है, दूसरी फार्मूला जो है गामा जो है वो बराबर होता है G प्लस SE गामा W अपॉन 1 प्लस E। थर्ड फार्मूला आपके पास था गामा D की, जो कि गामा अपॉन 1 प्लस W। फोर्थ फार्मूला था गामा ट्राई का एक और 1 माइनस नीटा ए G गामा W अपॉन 1 प्लस WG। सॉरी ये तो गलत वाला G डाल दिया मैंने यहाँ पर, WG। देन फिफ्थ फार्मूला हमारा था गामा डैश इक्वल गामा सबमर्जेड इक्वल्स टू G माइनस 1 प्लस E। सिक्स फार्मूला का हमने लिखा था गामा सबमर्जेड इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। ओके, देन एक और लास्ट फार्मूला जो था वो था V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू 1 प्लस E1 अपॉन 1 प्लस E2 इक्वल्स टू गामा D2 अपॉन गामा D1। ठीक है, इसमें जो है आपके पास ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये तो आपको याद रहनी चाहिए किसी भी हालत में। देन यहाँ एक सबमर्जेड जो है डेंसिटी जो होता है वो बराबर होता है सैचुरेटेड माइनस गामा W। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है गामा D की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर तो आपको हर जगह क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो आपको यहाँ भी यूज़ करने के लिए मिलेंगी इन फार्मूलाज में। ठीक है, ये फार्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, टिप ऑफ द टंग। ठीक है, हर जगह आपको ये फार्मूलाज का यूज़ मिलेगा। देन जो है हमने दो और फार्मूला डिस्कस की थी, जो कि होता है पिग्नोमीटर मेथड से, जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं सॉइल की W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। देन वाटर कंटेंट की फार्मूला जो है हम ऐसे लिखी थी, कैसे W माइनस W अपॉन W माइनस W 1 2 3 4, G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 फिर इंटू 100। ये जो है ये फार्मूला आपको याद रखनी है।
इसमें मैक्सिमम आपको ये वाली फॉर्मूला तो याद रहनी ही चाहिए। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तो हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू।